यहाँ से ऑब्जेक्ट क्या होता है? सर क्लास में हम ऑब्जेक्ट के जो एट्रीब्यूट्स हैं उसको डिफाइन करते हैं और ऑब्जेक्ट में हम फिर जो क्लास को रियल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट करते हैं। Okay, you write many time class and give name and accordingly you have write methods. Okay, main method as well. मेन मेथड नॉर्मली आपने वर्क मेन मेथड पे किया हुआ है और कुछ आपने वेरिएबल बनाए। ओके, सो द डिक्लेरेशन, या हम कहेंगे सेंटेक्स कैसे करते हैं? सेंटेक्स हम यही करते हैं कि क्लास लिखते हैं एंड वी हैव टू गिव नेम and we have to give some kind of blocks, okay, curly bracket, and inside there is a field or some kind of method, okay, fields and method, okay. What do you mean by the field? You can say it's kind of a variable, and method आपने सिर्फ एक ही method पढ़ा हुआ है, main method, okay. You can say this is the members as well. आप the word is next is maybe you can say members or you can say field and members, okay. So no confusion with the members and the field word. So now in here I am written here int id, okay. I said अगर आप क्लास के बाद जो लिखते हैं कोई वेरिएबल डिफाइन करते हो, what is called as a data member, or you can say the field member, or you can say the instance variable, okay. The mostly word use instance variable, so don't confuse these words. I try to give you different names so you can grab it. So now string name, you can give another variable, you can define another variable, string name. So no matter, it's also a member, okay. So now we can create a method inside it. So we have to write public static void, okay. You know, you already do this, you already done this, okay. So now if I'm writing in here how I create object, you know that I already told that you have to write you have to write. So now when we're creating object, there's a two name of the object. When we say object, you can easily grab what we mean by the object, okay. If I say reference variable, it's the same name as an object, okay. Or we can say class variable, it is the same, okay. We have given now three names: object, or a reference variable, or the third is class variable. These three are the same thing, okay. So don't confuse with this also the word, just because when you're opening the book, or you maybe you watch number of videos, maybe you can hear that word many times. So well, so how you make it? You just to write the name of the class, which is student in here, student in here. So write in the name. So give the variable. This is the variable, actually is an object, okay. This is an object. You can say reference variable, you can say class variable. This is the known as a class variable, known as an object, known as a reference variable. So now you know that, and you know that I told you many times that how to create object, you have to write new and then class name, and this is the how you create a class, okay. So this is a way to create a class. So now I got it here. आपने यहाँ तक समझ लिया कि कैसे क्लास को क्रिएट किया जाता है? यशवंत, यहाँ तक गेट कर लिया कि कैसे क्लास को क्रिएट किया जाता है? शाबाश. Yes, sir. Yes, sir. Shabash. Anybody else? Okay. Gigi sir. Shabash. Okay. Yes, sir. Okay. So Bharti, Anika, sister, and everybody here, and the name is Elian also said that I understand. I hope everybody, other students as well, get the point, grab the lecture. Okay. So you know that creating, how to create, okay, object. So you have created the object. Now how to access? No problem is we have defined this values, okay. We have defined this value. Now I want to access this value. ना मैं इसको इस्तेमाल भी तो करूँ, ये मैंने बनाए हैं. तो ऑब्जेक्ट क्या करता है? ऑब्जेक्ट के पास ऐसी फैसिलिटी होती है, वो इम्प्लीमेंट करता है, जो भी क्लास के अंदर है वो चीज़ को इस्तेमाल कर सकता है. एज आई टोल्ड यू, क्लास इज अ स्ट्रक्चर. हमने बताया, याद है आपको लेक्चर में मैंने आपको एक ढकना दिखाया था, कैप दिखाया था, और साइड में कुछ बिस्कुट पड़े हुए थे. तो मैंने कहा था वो ढकना बेसिकली वो स्ट्रक्चर है, वो उसमें क्या करता है, हम कोई चीज़ डालते हैं वो उसी टाइप की शेप बना देता है. तो स्ट्रक्चर, हम क्लास के जो भी चीज़ें हैं वो उसको इस्तेमाल करता है ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द क्लास है. सो नाउ व्हाट विल डू, जो भी इसके पास पड़ी हुई चीज़ें उसको इस्तेमाल करेगा. सो आईडी एंड स्ट्रिंग नेम विल बी यूज बाय दिस S1 वो ऑब्जेक्ट है ना, वही यूज कर सकता है ना. तो आपको ये भी कर सकते हो, एसेसिंग मेंबर थ्रू द रेफरेंस वेरिएबल. बिल्कुल यही वर्ड हुई मीनिंग. तो S1 के बाद डॉट लिखो, डॉट के बाद आईडी दे दोगे, तो क्या हो जाएगा, ये हम एक्सेस कर पाएंगे ना. ये हमने एक्सेस कर लिया. बिल्कुल एक्सेस करना समझ में आ गया कैसे हम एक्सेस करते हैं. उम्मीद करता हूँ आपको अंदाजा आ गया होगा कि एक्सेस कैसे करते हैं. तो हमने क्या एक्सेस किया भाई, हमने इसकी फील्ड्स एक्सेस की हैं, हम इसके डेटा मेंबर एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है ना. हम इसके वेरिएबल्स को एक्सेस कर रहे हैं, ओके. सो हम इस तरह भी कर सकते हैं, हम किसी एसओपी के अंदर डालते हुए S1.id, क्या जवाब आएगा? जवाब आएगा 0, क्योंकि पता है ना कुछ भी नहीं हमने रखी, कोई इनिशियलाइजेशन तो की नहीं ना, वैल्यू तो नहीं रखी, तो जवाब तो डेफिनेटली 0 ही आएगा, ठीक. उसके बाद वहाँ क्या होगा, इफ आई एम डूइंग S1.name, व्हाट विल इट डू, इट विल जस्ट गिव यू द वैल्यू null, जस्ट बिकॉज यू मस्ट नो दैट जब हमारे स्ट्रिंग की कमाल करते हैं, स्ट्रिंग में हमने कुछ नहीं डाला, तो इन द एंड हमें क्या रिजल्ट मिलता है, वो null मिलता है, ठीक है. 0 मिलता है हमें इंटीजर के लिए, और null मिलता है क्योंकि हमने कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की, कोई वैल्यू नहीं दी. दैट्स द रीजन वी गॉट द null वैल्यू.
So hope so you got this point कि भाई हमने किस तरह एक्सेस करना सीखा, हमने किस तरह ऑब्जेक्ट बनाना सीखा, किस तरह एक्सेस करना सीखा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब हम कहते हैं कि चलो एक्सेस तो कर लिया, मगर मैं वैल्यू भी देना चाहता हूँ। हाउ कैन आई गिव द वैल्यू? सिंपल इज दैट s1.id हमने लिखा, हम इक्वल साइन दे देंगे, एंड आई कैन राइट एज वेल 786, हमने कोई वैल्यू दे दी 786 और 143 और 786 को मैटर नहीं, ठीक है, कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। इस तरीके से वो जो है आपने एक वैल्यू दे दी किसको? आईडी को, ठीक है। और फिर चाहो तो सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एलन के अंदर इनसाइड आप ये लिख सकते हो, एंड यू कैन राइट इट डाउन इन द इनसाइड ऑफ एसओपी एंड गॉट द आंसर इन द कंसोल। ओके, आप आंसर गेट कर सकते हो कंसोल में। आई थिंक यू गॉट इट, गॉट इट फ्रॉम हियर, समझ आ गया? Be quick, students. Yes, Yes, sir. शाबाश। ओके, सो दैट्स अ ग्रेट थिंग दैट कि आप बहुत ज़्यादा ग्रैब कर लो, ठीक है, शाबाश, ये अच्छी बात है सबसे कि नाउ यू आर गेटिंग सो फास्ट इन योर माइंड, ओके, जस्ट बिकॉज ऑफ डूइंग सो मच प्रोग्रामिंग एंड दैट्स द रीजन you grab me very fast. Okay, Wakali, thank you so much. Okay, so now this is the way you can write, also you can access value and you can also give value, initialize भी कर रहे हो, ठीक है ना, with the object. So I think yet now हमारा आज का टॉपिक यही था कि आपको जो अंदाजा हो जाए, आपको पता चल जाए, ठीक है, कि किस तरीके से जो है वो ऑब्जेक्ट बनाए जाए। ओके,